Hello friends, now you must have gone with the first video of working capital and I hope you must have understood the basic of working capital. Now today we will solve example number 1 of working capital. The example is in front of your screen. Just I will read out the highlights of the example that we are asked to estimate the requirement of working capital for the activity level of 1,56,000 units of production. इसका मतलब ये कंपनी 1,56,000 यूनिट्स एनुअली प्रोड्यूस करती है और उसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है फॉर विच पर यूनिट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गिवन रॉ मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट 90, डायरेक्ट लेबर 40, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 30, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 25, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 20. So total cost per unit is rupees 205, profit is rupees 60 and selling price is rupees 265. Now out of that, selling price and profit is not relevant for us because we are going to calculate the requirement of working capital on cost basis. And some additional information is given. That is a raw material holding period is 1 month, material in process half month, that is a material in process means WIP period. Finished goods holding period is 1 month, credit allowed to debtors is 2 months, credit allowed by supplier is 1 month, lag in payment of wages, that is outstanding wages, is a half month, and expected cash balance is rupees 60,000. So with this we have to solve this example, but first of all we will make one working note to prepare our cost sheet. We have to find out various values, that is for the raw material, WIP, finished goods and debtors. So just check out if I prepare the cost sheet on per unit basis. So direct material, first is direct material. Direct material per unit is given rupees 90. Then direct labor is given to us rupees 40. Direct expenses are not given to us, so direct material plus direct expenses prime cost is 130 plus factory overheads. Factory overheads are given in the example rupees 30. There is opening stock of WIP and all those things are not given. Directly here we can find out the works cost. This is works cost per unit 160 plus administrative overheads. Administrative overheads are given rupees 25. So 185 will be cost of production and plus selling and distribution overheads, which is given to us rupees 20. The total cost is 205. So हमारे पास जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है इसको हमने एक फॉर्मेट में डाल दिया हमारे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में, बिकॉज हमको ये चाहिए कि हमने फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कौन से बेसिस पे करना है, WIP का कहाँ पर करना है और डेटर्स का कहाँ पर करना है. सो ऑब्वियसली नाउ वी हैव गॉट द कॉस्ट शीट, सो नाउ वी विल डिटरमाइन material stock will be valued on direct material. Now next one is WIP. What is the base of WIP? That is a works cost or manufacturing cost. So works cost is rupees 160. So यहाँ पर हम WIP के वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट बेस लेंगे हम 160. Then finished good stock. Finished good stock हम कौन से बेसिस पे लेते हैं? That is the cost of production. So cost of production is 185. So यहाँ पर हम finished goods पे लेंगे. Finished goods valuation base will be 185 और debtors के लिए total cost. So हमारी total cost is 205. So this will be base for debtors. So हमारे इसके बीच में हमको मीन्स ये valuation base जो है ये हमारे लिए important है. रुपीज 90 will be for raw material stock, रुपीज 160 for WIP valuation, रुपीज 185 for finished goods and 205 for debtors. So now we will solve the example, that is basically what we have to do, estimation of requirement of working capital. Now we will solve the example. The heading for the example will be estimation of requirement of working capital. यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है करके मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं दिया है. We require main 3 columns. One is a particular, दूसरा amount rupees and amount rupees. 3 columns are required. Out of that, first column will be the bigger one. Second, this amount column will be for inner column and this is outer column.
So now we will first start with the current assets. So first current assets. करंट एसेट्स में फर्स्ट आइटम इज आवर स्टॉक. अभी स्टॉक के अंदर भी तीन टाइप के स्टॉक्स दिए हुए हैं. दैट इज अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो सबसे पहले हम लेते हैं रॉ मटेरियल. तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल का हमका वैल्यूएशन किस पे करना है? The base for raw material valuation is direct material cost per unit, that is ₹90. और ये हम जो भी एक्टिविटी लेवल हमारी क्या है 1,56,000 यूनिट्स. सो 1,56,000 यूनिट्स इंटू ₹90. सो हम इसको टोटल करेंगे तो दैट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. 1,56,000 यूनिट्स इंटू 90. इसको डिवाइड करेंगे हम 12 मंथ्स से. यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मंथ. सो डिवाइड बाय 12 मंथ्स. ये देखो 1,56,000 इंटू 90 दैट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल. सो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू हमारे पास रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना दिया है तो 1 मंथ विच इज गिवन इन द एग्जाम. सो दैट इज 1,56,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1. अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो दैट अमाउंट विल बी 11,70,000. So that will be the amount of raw material stock. तो हमारे पास raw material stock में कितनी अमाउंट ब्लॉक होगी? That will be 11,70,000. Now second will be WIP. Again our activity is 1,56,000 units. So सबसे पहले I will take number of units 1,56,000 into. अभी WIP की प्राइस कौन सी हमने लेना है? जो हमने हमारे वर्किंग नोट में देखा कॉस्ट शीट जो बना है उसमें WIP वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन वर्क्स कॉस्ट एंड वर्क्स कॉस्ट वाज ₹160. So 1,56,000 divided by 1 multiplied by 160 that will be the total value of WIP divided by 12 months into. अब यहाँ पर क्या दिया है देखो कि WIP होल्डिंग पीरियड इज गिवन इन द एग्जांपल दैट इज हाफ मंथ. सो हाफ मंथ के लिए या तो आप 0.5 ले लो या 1/2 करो. तो मैं यहां पर ले रहा हूं 0.5. 1,56,000 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू हाफ मंथ. इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे दैट अमाउंट विल बी 10,40,000. सो अमाउंट ऑफ WIP स्टॉक विल बी 10,40,000. नाउ थर्ड वन इज फिनिश्ड गुड्स. मैं यहाँ पर पर्पसली शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए. नो अगेन लेवल ऑफ एक्टिविटीज 1,56,000 यूनिट इनटू अभी फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हमने वर्किंग नोट पे देखा है कि फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹185. सो 1,56,000 इंटू 185 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू ये आप चेक करो फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड कितना दिया है दैट इज गिवन बाय 1 मंथ. सो मल्टीप्लाइड बाय 1. 1,56,000 इंटू 185 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू 1. इसको आप सॉल्व करो दैट अमाउंट विल बी 24,05,000. नेक्स्ट. सो पहले हो गया स्टॉक. नाउ सेकेंड डेटर्स. डेटर्स के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? सो दैट इज गिवन इन द एग्जांपल दैट डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज ऑफ 2 मंथ्स. सो 2 महीने की जो हमारी टोटल कॉस्ट है दैट विल बी गेटिंग ब्लॉक इन डेटर्स. सो अगेन लेवल ऑफ एक्टिविटीज 1,56,000 यूनिट्स इन. अभी डेटर्स का वैल्यूएशन हम कौन सी कॉस्ट पे करते हैं? जो हमने वर्किंग नोट में देखा है दैट इज अ टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज ₹205 divided by 12 months into debtors collection period 2 months. So 1,56,000 into 205 divided by 12 into 2. So अगर एक अमाउंट कैलकुलेट करोगे दैट अमाउंट विल बी ₹53,30,000
मैं इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लेता हूँ। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये जो टोटल स्टॉक हमने कैलकुलेट किया, रॉ मटेरियल स्टॉक 11,70,000, WIP 10,40,000 और फिनिश गुड्स 24,05,000. So total of this stock is 46,15,000. बिकॉज इनने स्टॉक करके इसको मैंने क्या कर दिया, पहले इनर कॉलम पे ले लिया तीनों का इंडिविजुअल स्टॉक एंड टोटल स्टॉक इज ऑन आउटर कॉलम 46,15,000. अमाउंट ऑफ डेटर्स 53,30,000. तो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया. तो थर्ड आइटम इज कैश. तो कैश के लिए क्या है, तो कैश इज ऑलवेज डायरेक्टली गिवन इन द एग्जांपल. सो कैश अमाउंट हमारे पास डायरेक्टली दिया है. लास्ट आइटम इन द एग्जांपल दैट इज रुपीज 60,000. सो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, कैश हो गई. इसके वाला और क्या आ सकता है कि जनरली प्रीपेड एक्सपेंसेस, सो विच इज नॉट गिवन इन द एग्जांपल. तो यहाँ पर हमारे करंट एसेट्स के आइटम खत्म हो गए. वी विल टेक द टोटल, दैट विल बी द टोटल करंट एसेट्स. टोटल करंट एसेट्स दैट इज A. सो टोटल ऑफ द करंट एसेट्स, आप इन सब की टोटल लोगे, दैट टोटल विल बी 1,05,000. So this is total current assets. So this was the part A, current assets. So total current assets will be 1,05,000. Now part B, we will calculate current liabilities. So check out current liabilities में हमारे पास क्या दिया है. तो जिन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें एक दिया है कि क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर इज ऑफ 1 month. क्रेडिट अवेल फ्रॉम सप्लायर इज 1 month, दैट इज अ क्रेडिट अवेल फ्रॉम आवर सप्लायर, जिसके पास से हमने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा. जो भी हमने टोटल रॉ मटेरियल परचेस किया है उसके ऊपर 1 महीने का क्रेडिट हमको मिलने वाला है. सो दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिटर्स. सो सबसे पहले हम लेंगे क्रेडिटर्स. नाउ क्रेडिटर्स 1,56,000 यूनिट. अब क्रेडिटर्स हम किस पे निकालने वाले हैं, क्रेडिट परचेसेस के ऊपर. अभी आउट ऑफ टोटल परचेसेस इसमें क्रेडिट परचेस कितना है, कैश परचेस कितना है, हमको दिया नहीं है. सो वी विल अज्यूम दैट एंटायर परचेसेस इज ऑन क्रेडिट. सो 1,56,000 के लिए हमको रॉ मटेरियल परचेस करना है एंड रॉ मटेरियल परचेस प्राइस पर यूनिट इज रुपीज 90. सो दिस विल बी आवर टोटल परचेसेस. 1,56,000 इंटू 90. ये परचेसेस को मैं 12 मंथ से डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड विच इज गिवन इन द एग्जांपल इज 1 month. मीन्स टोटल परचेसेस जो है मेरा 1,56,000 इंटू 90, उसके में से 1 महीने का परचेसेस विल बी इन क्रेडिटर्स. सो दैट क्रेडिटर्स, इफ यू कैलकुलेट दिस, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रुपीज 11,70,000. और इसके अलावा क्या दिया है, तो एक आइटम दिया हुआ है दैट इज अ टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ अ मंथ. इसका मतलब जो भी वेजेस है हमारे उसको 15 दिन के बाद में दिया जाएगा. कि वहां पर कैसे टाइम लैग इज मींस टाइम रिक्वायरिंग पेमेंट, और यहाँ पर दिया है टाइम लैग इज 15 डेज. इसका मतलब क्या कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक की जो वेजेस है वो 15 तारीख के बाद में दिए जाएंगे. 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक के जो वेजेस है वो उसके बाद में दिए जाएंगे 1 तारीख को. सो लाइक दैट जो टाइम लैग इज 15 डेज और हाफ अ मंथ. और जैसे कि हम यहाँ पर सब मंथ्स में निकाल रहे तो 15 डेज को मैं हाफ अ मंथ कंसिडर करूंगा. सो सेकेंडली आउटस्टैंडिंग वेजेस. सो वेजेस विल बी 1,56,000 यूनिट्स इनटू वेजेस का कॉस्ट दिया है पर यूनिट दैट इज रुपीज 40 डिवाइड बाय 12 इनटू हाफ मंथ दिया है इसके लिए 0.5. So 1,56,000 into 40 divided by 12 into 0.5, that amount will be 2,60,000. So 11,70,000 is the creditors and wages are 2 lakh, outstanding wages are 2,60,000. So total current liability will be, I will take on outer column 11,70,000 plus 2,60,000. So that will be 14,30,000.
this is total current liability. Now what I want to find out? Working capital. That is net working capital that is A minus B. So A is total current assets, B total current liabilities 14 lakhs 30,000. So आप calculate करो, that is a 1 crore 5,000 minus 14 lakhs 30,000. So net working capital will be 85 lakhs 75,000. So this will be our answer. Net working capital, estimation of working capital will be 85 lakhs 75,000. Ultimately हमने क्या कर दिया? Current assets minus current liabilities. So current assets के individual item हमने calculate किए as per the information given. So stock, total stock, debtors plus cash. These are the total current assets. उसमें हमने current liabilities minus कर दिए. Current liabilities में क्या है? Creditors and outstanding wages. So this is total current liability. So total current assets minus total current liability. Requirement of working capital will be 85 lakhs 75,000.